Hello everyone. So today we are going to learn about shift registers, data movement and arithmetic operations. The operation of the arithmetic operations and shift register is exactly same as you have studied in DLD and other related subjects. In this lab we will implement these operations with the help of programmable logic control, and I will give you guys a simple demo about these operations in Logix Pro so that you can easily solve the lab tasks. So let's get started. Basically first we will cover shift registers. The shift register is a number of internal grouped together relays, normally 8, 16 or 32, which allow stored bits to be shifted from one relay to another. The grouping together of internal relays to form a shift register is done automatically by a PLC when the shift register function is selected. This is done by using the programming code against the internal relays number that is to be first in the registered array. Shift registers can be used where a sequence of operation is required or to keep track of particular items in a production system. The shift register is most commonly used in conveyor systems, labeling or bottling application, etc. Then we have data movement instructions. There are basically two common instruction sets. The single instruction is commonly called move, copies a value from one address to another. The move instruction needs to know two things: source, where the data we want to move is located, destination, and the location where the data will be moved to. We write an address here. Also the data can be moved to the physical output. Then we have arithmetic instructions. There are basically 5 arithmetic operations we will cover in Logix Pro, which is addition and then subtraction, multiplication and division, and then square root. So in addition, a functional block adds two values stored within the controller and places the sum in a specified register. The operand values can be fixed constant values contained in input or holding registers or variable number stored in any memory location. Figure illustrate a typical addition function block. Here we have a register 1 and then register 2, and we add these two values using a add block, and then we have an output destination where these two values which we have added stored in that particular register. A control line enables the operation of an addition block when the rung conditions are true. The processor performs the addition function in the block shown in figure. Register 1000, 1000 and register 1001 can be preset values, and these can be a storage registers or input output registers. Each time an off to on transition enables the control line, the instruction adds the values in these two registers and places the result in register 2000. The done or enable output coil indicates that the operation has been completed. This output remains on as long as the control line is true. And the same procedure can be followed in subtraction block and multiplication block and division and square root block. I will cover these all blocks and these shift registers in Logix Pro 2. So let's move into Logix Pro and we will implement these arithmetic operations and shift registers so you guys can easily understand the operation of these arithmetic operations and shift registers. तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने यहाँ पे एक ऐड का ब्लॉक यूज़ किया, तो आप इस ऐड के ब्लॉक की जगह सब्ट्रैक्शन ब्लॉक और इसके अलावा जो भी ब्लॉक्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के वो आप यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐड का ब्लॉक आपको समझाऊंगा, बाकी आप खुद उस ब्लॉक जो है वो यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह यहाँ पे मैंने शिफ्ट लेफ़्ट वाला ब्लॉक यूज़ किया है और आप जो है राइट वाला यूज़ कर सकते हैं इसके बाद. एंड देन एक मैंने मूव का ब्लॉक यूज़ किया है. तो ऐड के ब्लॉक में बेसिकली हमारे पास एक सोर्स है और एक सोर्स बी है एंड देन एक डेस्टिनेशन है.
तो ऑब्वियसली सोर्स में एक में आप बताएंगे कि कौन सी वैल्यू आपने किस वैल्यू के साथ जो है वो ऐड करवानी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने बेसिकली N7:0 रजिस्टर जो है वो मैंने असाइन किया हुआ है कि इस रजिस्टर में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने ऐड करवाना है सोर्स B में, जो कि मैंने N7:1 दिया हुआ है, ठीक है। और इस N7:1 रजिस्टर के अंदर जो भी मेरे पास डाटा होगा वो ऐड हो जाएगा इस ऊपर वाले सोर्स वाले रजिस्टर के साथ, ठीक है। अब वो डाटा चाहे वो डेसिमल में हो या बाइनरी में हो, वो दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैंने क्या किया है कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने ली हैं। ये देखें, मैंने जो N7:0 था इसकी डेसिमल वैल्यू 2 ली है, और इसी तरह N7:1 है जो इसकी डेसिमल वैल्यू मैंने 2 ली है। तो बेसिकली इस ऐड ब्लॉक को अब करना क्या चाहिए कि इस 2 को जो इस रजिस्टर में पड़ा है और इस 2 को जो N7:1 रजिस्टर में पड़ा है, इन दोनों को ऐड करके आउटपुट जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है। और डेस्टिनेशन मैंने अपनी यहाँ इस वक्त जो असाइन की हुई है वो जो आउटपुट पोर्ट नंबर 2 है उसको मैंने अपना डेस्टिनेशन माना हुआ है, और उस डेस्टिनेशन पे मेरी ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होके उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी, ठीक है। देन मेरे पास से जो शिफ्ट लेफ़्ट बिट है, इसमें मैंने बेसिकली सबसे पहले तो आपने जैसे हम सीक्वेंसर में करते थे कि फ़ाइल नेम देना है आपने, ठीक है। तो फाइल मैंने क्या दिया इसमें, मैंने कहा है कि मेरे पास जो इस रजिस्टर जो N7:2 वाला रजिस्टर है इसमें जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं बाइनरी में, ठीक है, इन वैल्यूज़ को मैंने शिफ्ट लेफ़्ट करना है, ठीक है। और देन कंट्रोल की एक बिट है, कंट्रोल बिट में आपको पता है कि ये ट्रैक रखती है आपका इनेबल डन, और जो आपके पास ये शिफ्ट रजिस्टर की वैल्यूज़ हैं इनका ट्रैक रखती है आपके पास। तो बेसिकली आपने R6:0 यहाँ पे देना होता है, इसके अलावा इसका कोई यहाँ पे काम नहीं होता। लेकिन यह आपका जो मेमोरी है और जो आपकी इनेबल और डन पिन है उसको ट्रैक रखती है, ठीक है, उसका ट्रैक रखती है आपके पास। देन आपके पास बिट एड्रेस है। बिट एड्रेस बेसिकली आपके पास वो एड्रेस है कि जो बिट आपने शिफ्ट करवानी है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने input:1/0, इसका मतलब ये है कि जो मेरी इनपुट पोर्ट 1 है उसकी जो 0 लोकेशन पे मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो डाटा अगर 1 है तो ये शिफ्ट लेफ्ट 1 करेगा, अगर वो डाटा 0 है तो वो डाटा 0 को जो लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है। और लेंथ मैंने यहाँ पे 16 रखी हुई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 से लेकर 15 तक वैल्यूज होती है। टोटल आपके पास रजिस्टर में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 16, तो मैंने इसकी लेंथ 16 रख दी है। देन फाइनली मेरे पास एक मूव का ब्लॉक है। मूव का ब्लॉक बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम कि एक सोर्स देते हैं कि जिस डाटा को हमने मूव करना है, और फिर हम एक डेस्टिनेशन देते हैं जहाँ पे डाटा मूव करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो मैंने ऐड ब्लॉक में N7:0 लिया था वहाँ पे मेरे पास डाटा में 2 पड़ा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि इस डाटा जो 2 पड़ा हुआ है मेरे पास, इस डाटा को मैं मूव कर दूँ पोर्ट 4 पे, आउटपुट पोर्ट 4 पे। बेसिकली कौन सी पोर्ट पे, इस पोर्ट पे मैं इस डाटा को मूव करना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपल एक डेस्टिनेशन लिख दिया और एक सोर्स लिख दिया। सोर्स में वो डाटा होगा जिसको आप मूव कराना चाहते हैं, और डेस्टिनेशन में वो डेस्टिनेशन आएगी जहाँ पे आपने डाटा को मूव करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको डाउनलोड करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो ऑपरेट हो रही हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड टू PLC एंड देन गो ऑनलाइन एंड देन रन, ठीक है। तो ये मैंने रन कर दिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमने रजिस्टर सेलेक्ट किए हुए N7:0, 1, 2, तो इस इंटीजर जो है हमारे पास रजिस्टर है इसको हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास डाटा किस तरह से ऐड हो रहा है और किस तरह से डाटा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरे पास डाटा आ गया बाइनरी में। अभी देखें N7:0 पे मैंने जो डाटा दिया था ऐड करवाने के लिए वो 2 था, और 2 बाइनरी में 10 है, ठीक है। और इसी तरह सोर्स B में भी मैंने N7:1 रजिस्टर दिया था और उसमें मैंने जो डाटा दिया था वो 2 दिया था, और 2 बाइनरी में 10 होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो आउटपुट डेस्टिनेशन है आउटपुट O:2, तो इस आउटपुट डेस्टिनेशन पे मेरे पास ये 2 डाटाज जो हैं ये ऐड होके उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। तो अभी जब मैं इस इनपुट को input:1:0 को अनेबल करूंगा तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। देन
फिर हम इस शिफ्ट लेफ़्ट वाले का ऑपरेशन देखेंगे कि ये किस तरह से डाटे को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले मैं इसको जो मेरे पास पहली वाली इनपुट है इसको 1 करता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने इस इनपुट को 1 किया है तो आपके पास आउटपुट जो है वो क्या हो गई है, 2 + 2 = 4। तो आउटपुट पोर्ट 2 है जो आपके पास, उस पे आपके पास डाटा पहुंच गया जो कि डाटा क्या है 4। तो 2 + 2 बेसिकली 4 होगा। तो 4 आपका जो है वो इस आउटपुट 2 पे, ये देखें आप यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। देन जब यहाँ तक हम पहुंच गए तो अब उसके बाद हमने शिफ्ट लेफ़्ट वाले का ऑपरेशन देखना है कि ये शिफ्ट लेफ़्ट कैसे हो रहा है। तो शिफ्ट लेफ़्ट में हमने जो बिट शिफ्ट करवा रहे हैं वो देखें, मैंने यहाँ पे इनपुट कॉलन 1/0 लिया हुआ है। तो मतलब ये वाली इनपुट जो है, अगर ये मेरे पास 1 है तो यहाँ पे डाटा जो शिफ्ट होगा वो 1 बिट जो है वो आगे शिफ्ट होगी। अगर यहाँ पे ये 0 होगा तो 0 जो है वो शिफ्ट लेफ़्ट होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये बिट एड्रेस मैंने दिया हुआ, ये वाली इनपुट दी हुई है, इनपुट कॉलन 1/0। तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही वाली वैल्यू जो है वो शिफ्ट लेफ़्ट होगी। अगर वो 1 है तो 1 शिफ्ट होगा, 1 बाइनरी वो वाला शिफ्ट होगा, अगर 0 है तो 0 शिफ्ट होगा, ठीक है। तो चलें इसको देखते हैं। अगर मैं इस वाली अब जो 1/1 है इस इनपुट को 1 करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये देखें, क्योंकि ये वाली इनपुट आपके पास इस वक्त 1 है तो ये बिट एड्रेस भी 1 है। तो 1 जो है आपका N7:2 वाले जो रजिस्टर है इस पे एक 1 जो है वो ऐड हो गया, जो कि बेसिकली आपका शिफ्ट होगा। अब मैं अगर इसको दोबारा से, तो ये देखें, ये फिर एक और हमारे पास जो 1 है वो आ गया और ये इस तरह से शिफ्ट आगे होता रहेगा, ठीक है। एंड अगर मैं इसको अगेन अब प्रेस करूँगा, ये देखें इस तरह से ये डाटा आपके पास शिफ्ट होता जाएगा लेफ़्ट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अब 0 कर देता हूँ, इस इनपुट को क्लोज़ कर देता हूँ, अगर मैंने ये इनपुट को क्लोज़ कर दिया तो अब क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है और यही वाली वैल्यू मैंने एज अ बिट एड्रेस यूज़ की हुई है यहाँ पे, तो ये जो अब 0 है, अब यहाँ पे 0 जो है वो बिट वो शिफ्ट लेफ़्ट होगा, ठीक है। देन ये देखिए अभी, तो अब आपके पास ये 0 आ गया जो कि 0 अब शिफ्ट लेफ़्ट होगा। इसी तरह ये इस तरह चलता जाएगा। तो ये अब हमने ऐड भी देख लिया, ब्लॉक के ऐड किस तरह से हो रहा है। देन हमने ऑपरेशन देख लिया कि शिफ्ट लेफ़्ट डाटा किस तरह से हो रहा है। अब देन फाइनली हमारे पास जो ब्लॉक है वो रह गया मूव का ब्लॉक, कि आपके पास डाटा मूव किस तरह से हो रहा है। मेरे पास जो N7:0 रजिस्टर में वैल्यू पड़ी हुई थी 2, इस 2 को मैंने शिफ्ट करवाना है या मूव करवाना है बेसिकली डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन मैंने अपनी रखी हुई है पोर्ट 4, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास जो इस मूव की इनपुट है वो 1:2 है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो आपके पास जो डाटा इस N7:0 पे 2 डाटा पड़ा हुआ था वो डाटा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन मेरी क्या है, आउटपुट कॉलन 4। तो ये आपके पास डेस्टिनेशन है वो जहाँ पे आपने अपना डाटा मूव किया है। मतलब कि आपने जो N7:0 पे डाटा पड़ा हुआ था उस डाटा को आपने इस पोर्ट पे मूव कर दिया, और जो आपको पता है कि 2 बाइनरी में 1 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास डाटा यहाँ पे मूव हो गया। तो इसी तरह आप ऐड का ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, तो बाकी आप जो है वो लेफ़्ट, शिफ्ट लेफ़्ट एंड राइट, इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और बाकी जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं वो आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं लैब टास्क की तरफ। तो लैब टास्क आपके पास देखें क्या है, लैब टास्क आपके पास है एक्सरसाइज 1 में आपको कह रहा है टर्न ऑन 2 LEDs अल्टरनेटिवली आफ्टर 1 सेकेंड यूजिंग BSL एंड BSR। देन आपके पास एक्सरसाइज 2 है इम्प्लीमेंट लॉजिक यूजिंग मूव एंड MVM, और इसके आपके पास 4 टास्क हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने आउटपुट पोर्ट 2 पे इवन LEDs ऑन करवानी है, फिर आपने आउटपुट पोर्ट 2 पे ऑड LEDs ऑन करवानी है। इसी तरह आपके पास टास्क 3 है एंड टास्क 4 है। एक्सरसाइज 3 में आपको कह रहा है कि इम्प्लीमेंट अ 8-bit कैलकुलेटर विच कैन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट एंड निगेट। तो सिंपल आपने ये 6 टास्क जो हैं परफॉर्म करने हैं और इससे आपने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जो कि ये वाली जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये परफॉर्म कर सके। तो एडिशन का ब्लॉक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, बाकी जो भी ब्लॉक हैं
एग्जैक्टली उनका फंक्शन यही है कि किस तरह से वो परफॉर्म हो रहे हैं। अगर आपने ऐड की जगह मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक लगाना है तो सिंपल आप वहाँ पे वो ब्लॉक लगा देंगे, दो एड्रेसेस बता देंगे और एक डेस्टिनेशन बता देंगे कि किन दो वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी। तो इस तरह से आप ये सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये 3 टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। एंड ये लैब जो है लैब नंबर 10 थी, ठीक है। होपफुली ये सारे टास्क आप लोग कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।